Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, without wasting any further time, let's start our today's topic. So, in the previous class, I have told you that there are four sectors which we will be studying. So, first was private sector. Second was public or government sector. Third one was what was the third one? And fourth one was external, household or consumption. ठीक है, थोड़ा भूल जाते हैं बीच बीच में. So first one was private, second one was public, third one was household sector, and fourth one external. In external, I have told you imports and exports. आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. हाउसहोल्ड सेक्टर में कौन बिलोंग करते हैं? All the persons, doesn't matter it is entrepreneur or owner of Tata Trust, owner of Reliance Group, doesn't matter. A person will be belonging to household sector because he is consuming something. And all the enterprises, companies, big corporates, ठीक है. So every company's name will be included in private sector, which are majorly owned by private people. ठीक है. In government sector, I have told you 51% ownership अगर है गवर्नमेंट की किसी भी कंपनी में, so that is nothing but public sector. इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO एंड दीज ऑल काइंड्स. ये भी इसी में आएगा, इसरो भी इसी में ही आएगा. ठीक है. सो दीज ऑल आर गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर. ठीक है. सो नाउ इन टूडेज क्लास वी विल बी ड्वेलिंग इन प्राइवेट सेक्टर. So this whole chart represents the working or the necessities of a private sector company. So consider yourself an entrepreneur. Entrepreneur is the person who wants to start a business. ठीक है. उसके पास कुछ अलग आइडिया होगा या कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी. ठीक है. So based on his idea and his experience in the business field, an entrepreneur wants to start his new business. ठीक है. to venture into a new arena, जैसे मिस्टर इलॉन मस्क ने किया कि पहले तो पेपाल और इन सब इंटरनेट गाए थे ना एक, फिर बाद में क्या बने? स्पेस गाए, है ना, स्पेस एक्स जो उनकी कंपनी है.
सो यू आर अ एंटरप्रेन्योर, कंसिडर योर सेल्फ इन द शूज ऑफ एंटरप्रेन्योर। अगर आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है, एक फिजिकल कंपनी, सो दीज आर 4 थिंग्स विच विल बी रिक्वायर्ड बाई यू, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज लैंड, जहां आप अपनी कंपनी स्टैब्लिश करोगे, द एरिया इन विच यू विल स्टैब्लिश योर कंपनी, फॉर दैट पर्पज यू हैव टू होल्ड अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है। देन यू विल रिक्वायर लेबर हु विल बी वर्किंग इन योर फैक्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल। सी इफ यू स्टार्ट अ बिजनेस देर इज एन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आई विल बी टेलिंग यू इन दिस क्लास ओनली, ठीक है, इन फ्यूचर। सो आपको थोड़ा सा एक सम ऑफ अमाउंट चाहिए होता है, सो डैट योर बिजनेस इंजन विल स्टार्ट रनिंग, ठीक है। आपने पहले के स्कूटर्स में देखा होगा, टेम्पो में देखा होगा आपने, कैसे चलाते थे, पीछे जाके वो रस्सी लगाते थे ना, उसके बाद इंजन स्टार्ट होता था। सो सेम काइंड आपको थोड़े रुपए चाहिए होते हैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एंड दैट इज नथिंग बट कैपिटल, ठीक है। एंड वाया प्रोवाइडिंग दिस कैपिटल टू योर कंपनी यू आर एक्सपेक्टिंग सम प्रॉफिट और सम गेन्स इन नियर फ्यूचर, ठीक है। और कौन ये प्रॉफिट देगा? कंपनी ही ये प्रॉफिट देगी, अंडरस्टूड। And the last one is you yourself. You have the courage to start a new business because business field is very risky, ठीक है। The ups and downs of market. We are studying economy. You will see some of the terms recession, depression, economic boom, ठीक है। तो ये सारी terms होती हैं एक business से related. So it is very profitable or lucrative option, but it also involves risks. So you have the courage to incur this risks, ठीक है, and you are expecting to overcome these risks and make your company a profitable company. So including you, these 3 are required while starting your company, ठीक है। Now if you have a land, और ये मान लो आपने रेंट लिया किसी से, so land will take out rent from this enterprise. Labor, if labor is providing, if a person is providing you with his physical labor, then he is expecting from you wages, उसके तनख्वाह, उसके daily wages, ठीक है, ये आपको देने ही पड़ेंगे। The capital, in capital you will have interest, ठीक है। And entrepreneur, you yourself will take away all the profit from company. So you know, the moment you will register your company in the eyes of economy of any country, it is a legal person in the court of law. What is the term legal person denotes? That yes, this is not an individual, not a human being, ठीक है, not a person, but it can be sue or can sue anyone in court, ठीक है। कोई भी, जैसे कल को मैं हूं, आई कैन sue दिस पर्टिकुलर कंपनी, कुछ अच्छा सा नाम, आबरा कडाबरा, नहीं आबरा रख देते बस, आबरा कंपनी इन कोर्ट। और स्यू किसे किया जा सकता है? एक पर्सन को, ठीक है, जो वहाँ खड़ा है, हमको दिख रहा है कोर्ट में, उसी पर्सन को सू कर सकते हो। अब कल को एक ऊपर से इमेजिन दिस सिनेरियो, यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, ठीक है, शिमला में जा रहे हो आप, हिमाचल प्रदेश में हो, वैसे दिस इज जोग्राफिकली रॉन्ग, सो कंसिडर योर सेल्फ इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। सो उत्तराखंड में क्या हुआ, यू आर एन आउटसाइडर, तो आपने क्या किया, यू आर फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली में थोड़ा सा खून गर्म होता है हम लोगों का, तो क्या हुआ, व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, उत्तराखंड में जा रहे हो, आप मसूरी जा रहे हो, ठीक है, आवर ड्रीम डेस्टिनेशन, तो क्या हुआ, यू इनकर अ ट्रैफिक, ठीक है, सो आप उस ट्रैफिक में यू गेट इन्वॉल्व। नाउ देयर इज अ ह्यूज लाइन ऑफ ट्रैफिक, सो यू स्टार्ट हॉकिंग योर हॉर्न, ठीक है, दिल्ली में तो बहुत आम बात है ये। तो द मोमेंट यू प्रेस द हॉर्न, सडनली
there is a sound from hereby only, and all you are seeing that a big lump of soil is coming towards you, लैंडस्लाइड। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा जोग्राफिकली इनकरेक्ट है। सो वो लैंडस्लाइड आपके ऊपर आने लग गई। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप बताओ? जब लैंडस्लाइड आपके ऊपर आ रही है तो आप जाके कोर्ट्स में ये नहीं बोल सकते सर दिस पर्टिकुलर लैंडस्लाइड हैज़ हिट मी एंड आई वांट टू स्यू इट। अंडरस्टूड? तो जितनी ये कहानी मैंने बकवास मारी, बस इसको यही समझाने के लिए मारी कि ये लीगल पर्सन को स्यू किया जा सकता है। एंड दैट्स वाई इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्म्स द मोमेंट यू विल स्टैब्लिश योर company, that is Abra company, Abra Private Limited, so it has been given the status of a legal person, so it can be sued or can be sued in courts. Understood? Now land will take rent, labor will take wages, capital will have an interest, and entrepreneur will take away all the profit. So these are called factors of production, I think. ठीक है, now after incurring all this, after having interaction with all this, a firm, a enterprise will produce goods and services. ठीक है, यही हमारा आउटपुट है। So these goods and services are output. Now goods can be further divided or segregated into two parts. There are some intermediate goods like rolled steel, and in today's generation you see these number of big companies like Maruti and Honda, ये क्या करती हैं? they are not providing all the necessities of building a car from a scratch. तो क्या करती हैं? door handle he will give to particular MSME, micro, small and medium enterprise. I think this question has come in CAPF, Central Armed Police Force 2020, UPSC का एग्जाम है। So this kind of questions are coming, और अगर ये आपके गलत हो रहे हैं तो देख लो, नो कमेंट्स। सो डोर हैंडल एक को दे दिया, स्टीयरिंग टू MSME 2. So these big companies are doing nowadays these things, that they are acquiring their different materials from different MSMEs, small companies. ठीक है, and then in their own factory they are assembling it. ठीक है, so these are all kind of intermediate goods. ठीक है, अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो रोल्ड स्टील का एग्जांपल लो। from aluminum ore, aluminum has been extracted, फिर उसे स्टील बनाया जाएगा, फिर उसे रोल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी शीट्स बनानी है। इट इज़ मेलेबल, आई थिंक मेलेबल इज अ करेक्ट टर्म। सो एज स्टील इज मेलेबल, तो उसकी शीट्स बनाई जाएंगी। देन द इंटरमीडिएट गुड इज रेडी एंड इट कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू वेरियस थिंग्स, जैसे एरोप्लेन बनाना, बसेस बनाना। अंडरस्टूड? सो दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स एंड अनदर type of good is final good. Now final good is further segregated into consumption and capital goods. ठीक है, then consumption good is segregated into durable, non-durable services. Now I know you are all graduates and you can refer to this table on your own. तो सीधे आते हैं हम examples और confusions पे। Firstly, it is not that there is a concrete wall in between them. Okay, this wall is not there. A particular good can be considered as an intermediate good or a final good. ठीक है, for example, so we are at, there is no particular wall, concrete wall that is segregating intermediate and final goods, and we are taking the example of tea leaves. अभी क्या होगा? So
व्हेन अ टी हॉकर और टी सेलर इज सेलिंग यू द टी, ठीक है, अब वेल मेड, वेल कुक्ड, आप जो भी बोलो, वेल बॉइल्ड टी, ठीक है, देन द टी लीव्स हैव बीन कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स. क्यों? बिकॉज एट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द चाय, द टी, दीज टी लीव्स हैव बीन यूज्ड, ठीक है, इनको पहले पहले पानी, थोड़ा सा दूध डाला, चीनी डाला, चाय पत्ती डाली, टी लीव्स मतलब चाय पत्ती डाली, फिर उसे बॉईल किया, एंड द एंड प्रोडक्ट इज टी that has been served to you. So these tea leaves are acting as intermediate good. And now consider another example. ये तो रोज का एग्जाम्पल है. आपकी मम्मी ने, योर मॉम हैज ऑर्डर्ड यू टू गो टू द मार्केट एंड बाय सम टी लीव्स. घर पे आए मेहमान, उनको खिलाने समोसे और चाय, ठीक है, तो यू वेंट टू द मार्केट एंड बॉट टी लीव्स, बट नाउ दीज टी लीव्स are considered as final goods. Why? Because you have purchased these tea leaves in the market, and the further processing of tea leaves is happening in your home, that is household sector, in consumption sector. ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, इनके बीच में कोई पर्टिकुलर सेग्रीगेशन नहीं है. सो इससे हमें we can find out a conclusion that we can define goods, we can segregate goods into intermediate or final via this particular statement: the last transaction happened in the market. ठीक है, टी लीव्स की लास्ट ट्रांजैक्शन कहाँ हुई थी? जब हमने उसे टी हॉकर से लिया था. वी आर फ्रॉम कंजम्पशन सेक्टर, सो वी हैव टेकन द सर्व्ड टी. तो टी लीव्स हमको नहीं मिली थी, हमको एक सर्व्ड टी मिली थी, हॉट कॉफी मिली थी, ठीक है, तो उससे द टी लीव्स इज कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट. द लास्ट ट्रांजैक्शन इन मार्केट व्हेन आवर मॉम हैज ऑर्डर्ड टू बाय सम टी लीव्स, तो हमने ये किससे किया? एक रिटेलर से किया. रिटेलर कौन होता है? जो भी आप जनरल किराने की स्टोर पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ जहाँ ग्रॉसरी मिलती है, राशन मिलता है, सो दैट इज अ रिटेलर, ठीक है. So then tea leaves are considered as final because the last transaction in the market has been done by consumption sector. Understood? So यही confusion दूर हो गया. Final can be divided into consumption and capital goods. Capital I have told you. Okay, we will come to capital again. Consumption में आपको आते हैं durable, non-durable and services. So in durable, I think कोई भी एक particular year तो fix नहीं है, पर मैंने एक बुक में पढ़ा है कि 3 years है. सो द गुड्स विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड इमीडिएटली, जो 2-3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद यूज हो सकते हैं. जैसे कुछ भी ले लो, यहाँ तो लैपटॉप ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, एनीथिंग, ठीक है, बहुत सारे, बेड ले लो, कुछ भी ले लो. नॉन ड्यूरेबल में क्या आएगा? विच आर कंज्यूम्ड इमीडिएटली. बर्गर, अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक. अगर आप हर दिन पढ़ा रहे हो, ऑल्दो नाउ इस मॉडर्न जनरेशन वी हैव स्मार्ट बोर्ड्स एंड दिस वाइट बोर्ड ऑल, पर पहले के जनरेशन में तो चॉक्स हुआ करते थे. सो दैट पर्टिकुलर चॉक, अ पीस ऑफ चॉक कैन बी कंसिडर्ड एज नॉन ड्यूरेबल. ठीक है, नॉन ड्यूरेबल मीन्स the goods which can be consumed immediately. Durable means which can have a particular lifespan, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, 20 years. ठीक है, and these services are also considered as consumption good. Why? जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सो ये तो अब आपने सर्विस ले ली है ना, आपको समझ आ गया जो आ गया, इसके बाद आप क्या करोगे? अप्लाई करोगे सीधा. ठीक है, ऐसा तो है नहीं ये पर्टिकुलर सर्विस आपको मिले जा रही है 20 साल तक या 5 साल तक. अब मैं जो कल क्लास निकालूंगा, द क्लास विच विल बी रिलीज्ड डे आफ्टर टुमारो बाय मी, सो दैट इज अनदर क्लास, दैट इज नॉट द पर्टिकुलर गुड, दैट इज अनदर गुड. ठीक है, तो हर एक वीडियो एक अदर गुड की तरह कंसिडर किया जाएगा. सो सर्विसेज ऑल्सो कंजम्पशन गुड बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी कंज्यूम्ड इमीडिएटली. अंडरस्टूड? सो गोइंग फॉरवर्ड, दिस कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स, इसमें भी थोड़ी ट्रिक है. क्या ट्रिक है?
इनमें भी कोई सेग्रीगेशन नहीं है पर्टिकुलर। सी दिस इज योर बेसिक क्लास। तो ऐसा नहीं कि पूछे जाएंगे, पूछे जा भी सकते हैं प्री में या नहीं भी, बट दिस इज योर बेस ऑफ होल ऑफ आवर इकोनॉमिक सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि बाद में ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगी तो उनका ये सारा ही बेसिस होगा। ठीक है, कल मैंने थोड़ा सा इन्फ्लेशन के बारे में बताया, वो भी उसका बेसिस होगा। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसका तो बहुत ही बड़ा बेसिक्स है। ठीक है, बाद में बहुत काम आने वाला है हमें। और ये भी छोटी छोटी चीज़ें आपको दे विल हेल्प यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर सेग्रीगेशन इज नॉट देयर। कैसे, अभी बताते हैं। टेक एग्जाम्पल ऑफ वॉशिंग मशीन। ठीक है, सो अ पर्टिकुलर पर्सन हैज bought washing machine from the market. That particular person has an intention to start a business, entrepreneur. तो वॉशिंग मशीन को लेके कौन सा उसने बिजनेस खोला? उसने खोला गेमिंग जोन का बिजनेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि वॉशिंग मशीन में गेम खेल सकते हैं, पता है आपको। सो वॉशिंग मशीन में ऑफकोर्सली लॉन्ड्री का बिजनेस खोला होगा। सो लॉन्ड्री का बिजनेस उसने खोल दिया। अब द क्लोथ्स डेट आर बॉट द क्लोथ्स विच आर कैरिड बाई पर्सन लाइक कंजम्पशन, द पर्सन फ्रॉम द कंजम्पशन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर टू दिस पर्टिकुलर कंपनी, द लॉन्ड्री कंपनी। तो वॉशिंग मशीन विल वॉश दिस क्लोथ्स एंड अर्न सम प्रॉफिट, उनसे पैसे लेंगे, है ना। और ऐसे ही ये बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, so now this washing machine is acting as capital good because we have invested in washing machine so that we can earn profit in near future. We are hoping to earn profit in near future. ठीक है, हमारा एम ही वही है। now another thing, आपकी मम्मी बहुत तकलीफ में, as you know our parents are getting old. ठीक है, सबको मरना एक दिन। so our parents are getting old and you got a job. now you want to परचेज अ पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन, बहुत ही वर्लपूल की एकदम टॉप क्लास है, ए क्लास की, फॉर योर मॉम। ठीक है, तो उनको डोमेस्टिक वर्क में हेल्प हो जाएगी। सो दिस पर्टिकुलर परचेज ऑफ वॉशिंग मशीन डेट हैज बीन परचेज्ड बाय यू इन द मार्केट विल बी एक्टिंग एज कंजम्पशन गुड, क्योंकि ये हमारे घर में आ रहा है एंड इट इज नॉट कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट बिकॉज यू आर नॉट होपिंग ऑफ एनी फ्यूचर गेन। अंडरस्टूड? सो ये भी कोई पर्टिकुलर वॉल नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए इन दोनों के बारे में। सो दिस वाज ऑल द वर्किंग ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर। अगले टॉपिक पे चलते हैं। So our new topic will be investment, also called known as gross capital formation, GCF. ठीक है, सो कैपिटल ही होता है ये भी, है ना। क्या होता है? कैपिटल ही होता है। एंड आई हैव टोल्ड यू दिस इज अ पोर्शन ऑफ आउटपुट that is forming capital goods. So the portion of output which is contributing to capital goods means the goods which we are hoping to give profit in near future. तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाए। What is this output called? GDP of a country, gross domestic product. Although this is very different topic and we will be covering this topic in depth, but थोड़ा सा ओवरऑल और इसकी जनरल जो डेफिनेशन है वो समझ लेते हैं अभी के लिए। All final goods and services, all final goods and services
प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री और इन अ पर्टिकुलर रीजन, एक ही बात है, इन अ कंट्री in a specific amount of time is called GDP of that particular religion नहीं, region or country. ठीक है. So these all are important terms. All the productions happening on the soils of India, if we are talking about GDP of India, so all the productions that are happening in India, and these production are final in nature. These are not the intermediate goods and services. These are final goods and services. Goods and services both are included in a country or in a particular region. In the case of GDP of India, we are assuming that it is the territory of India within a specific time period which can be 1 year, 6 months, 2 months, 1 month. ठीक है, हम जनरली 1 year लेंगे. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी. सब कवर हो गया देखो, है ना. सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट इज द पोर्शन ऑफ आउटपुट विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू कैपिटल गुड्स. नाउ आई विल exemplify this. भट्टा एंटरप्राइज, ठीक है, क्या बना रही है? ईंट बना रही है. भट्टी लगी हुई है इसमें, बड़ी बड़ी भट्टियों में क्या बन रही है? ईंट. ठीक है. सो दिस भट्टा एंटरप्राइज इज प्रोड्यूसिंग कंजम्पशन गुड्स ऑफ वर्थ ₹700 एंड कैपिटल गुड्स ऑफ वर्थ ₹300. ठीक है, यहां तक इसकी अपनी ओन इमेज, मतलब इसके जो, अगर इफ आई वांट टू सेल दिस भट्टा एंटरप्राइज, सो व्हाट इज इट्स मार्केट कॉस्ट? 1 लाख मान लेते हैं. 1 लाख रुपीज इज इट्स मार्केट कॉस्ट इफ यू वांट टू सेल दिस एंटरप्राइज. सो कंजम्पशन 700, कैपिटल गुड्स 300 रुपए के जनरेट कर रही है दिस भट्टा एंटरप्राइज. नाउ व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट इन दिस? सो इन्वेस्टमेंट इज द पोर्शन ऑफ द आउटपुट विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू ओनली कैपिटल गुड्स. कितना है कैपिटल गुड्स? व्हाट इज द टोटल आउटपुट? व्हाट इज द जीडीपी? For our easiness, we will be having this ratio in percentage term. %30 is our investment in the economy. ठीक है, और ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही our economy will grow. ठीक है. एक काम करते हैं, we are importing capital goods of worth ₹100. Now in another case scenario, this is constant. Now we are also importing capital goods of 100 from outside. ठीक है, import export मैंने आपको बताया. What is the investment now? Portion of output which is contributing to capital goods. 300 previous, now 100. What is the output? ये बताओ मुझे. 1000 और 1100. वापस आउटपुट की डेफिनेशन पे जाओ, वापस जीडीपी की डेफिनेशन पे जाओ. All final goods and services produced within a territory or within a country in a specific time. This particular capital good which has been imported, does the manufacturing or the origin of these imported capital goods are traced in India? No.
That's why they are called import, है ना. 1000 ही रहेगा. मीन्स द इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड. ठीक है. अब एक काम करते हैं, 40% मान लो वी आर एक्सपोर्टिंग कैपिटल गुड्स ओनली. कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम 40%. जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये गुड्स बने कहाँ हैं? इंडिया में. ठीक है. इन्वेस्टमेंट इज 300 प्लस दिस इज ऑल्सो द केस सिनेरियो. ठीक है. दिस इज कंटिन्यूइंग. 300 प्लस 100 ऑफ इंपोर्ट माइनस 40 वी आर एक्सपोर्टिंग डिवाइडेड बाई 1000. क्यों? आउटपुट तो वही रहेगा चाहे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. क्या दिक्कत है? बना का है इंडिया. इंटू 100 कितना आता है? 400 माइनस 40 36%. The investment in the economy has been reduced if we are exporting. So tomorrow there can be a statement in UPSC exams that if we are exporting capital plus consumption goods both, so we are importing our final goods, sorry, we are exporting our final goods from India to another country. So what will be the effect on investment considering all things constant? अगर all जितनी भी सारी चीज़ों को constant मान लिया, so is this what is the implication of this particular statement? क्या होता है? Investment is reduced. ठीक है. यहाँ भी आपने देख लिया import से क्या होता है? Investment has been increased in the economy. So this is an important subject, sorry, important concept, है ना. Absorb this. छोटी सी 2 टर्म पे और एम्फेसिस करता हूँ बिकॉज आई फॉरगॉट एट दैट टाइम. जो हमने कैपिटल पढ़ा था, जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, वन वाज कैपिटल, है ना. सो इस कैपिटल में फिजिकल कैपिटल भी हो सकता है, मॉनेटरी कैपिटल भी हो सकता है और इंटेलेक्चुअल. मीन्स ट्रेड राइट्स, आईपीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते ना इफ़ यू हैव अ पर्टिकुलर आइडिया और अ पर्टिकुलर प्रोसेस. जैसे कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का एग्जांपल लीजिए. इफ देयर इज पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी लाइक एस्ट्राजेनेका. ठीक है. एस्ट्राजेनेका कंपनी है एंड इट हैज़ मेड अ पर्टिकुलर दवाई, a particular medicine via a process A, and this medicine to cure AIDS has been ready. Now ये कंपनी ने बेचना स्टार्ट किया हर जगह. ठीक है. सो इंडिया ने क्या किया? इंडिया हैज़ ग्रेट और यूनिक एबिलिटी टू रिवर्स इंजीनियर. ठीक है. तो इंडिया ने रिवर्स इंजीनियरिंग की सहायता से विद द हेल्प ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग इंडिया हैज़ फाउंड आउट द इंग्रेडिएंट्स. आई थिंक द फुल फॉर्म इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स. ठीक है. सो दिस API इज द रॉ प्रोडक्ट और इंग्रेडिएंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ मेडिसिन. सो वाया द हेल्प ऑफ reverse engineering, India found out the API formula, and now in Indian companies on Indian soil itself they are
मैन्युफैक्चरिंग दिस पर्टिकुलर मेडिसिन एंड गेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, सो यहाँ आ जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। सो दीज आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ए इज माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इस पर्टिकुलर प्रोसेस ए को कोई यूज नहीं कर सकता while achieving its output. Understood? So this is IPs. तो कैपिटल कैन बी फिजिकल, मॉनेटरी और इंटेलेक्चुअल हो सकता है, बट इकोनॉमिक्स में हम ज़्यादातर ये टर्म पे करेंगे। ठीक है, मॉनेटरी में क्या आएगा? मनी, और इसमें क्या आएगा? ऑल द बिग मशीन्स। ठीक है, कोई भी मशीन्स आएंगी वो इसमें आएंगी। सो ये कंसेप्ट था कैपिटल वाला। So one last part I will like to exemplify. One term is there, depreciation. It means consumption of capital goods in the formation of the final goods. अभी तक हम बोल रहे थे कि कैपिटल गुड्स का कंजम्पशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेग्रीगेशन था ना कंजम्पशन और कैपिटल में, है ना। पर हमने ये भी पढ़ा था, दिस इज नॉट अ स्ट्रिक्ट रूल टू फॉलो। डेप्रिसिएशन में क्या होता है? इट इज कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स। भट्टा कंपनी फिर से आई है सीन में, फिर से आ गई भट्टा कंपनी, भट्टा प्राइवेट लिमिटेड। कंजम्पशन 700 रुपीज वर्थ ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स ऑफ 300. Okay. Now at the time of manufacturing the EAT with the help of bhatti, 50 rupees depreciation has been happened. It means अगर मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ भट्टी, भट्टी मतलब ब्रिक क्लिन, जो इंग्लिश पूरा एंग्लोफाइल्स है उनके लिए ब्रिक क्लिन को बोलते हैं भट्टी। ठीक है, दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। सो ये हमने जो भट्टी खड़ी की थी, एट द टाइम ऑफ इरेक्टिंग दिस ब्रिक क्लिन आई इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ ₹300 मान लो, बट एज आई एम यूजिंग दिस ब्रिक क्लिन और भट्टी, दे आर गेटिंग डेप्रिशिएटेड। दिस कैपिटल गुड हैज बीन consumed in the process of making final goods. So अगर इसमें से 50 रुपये माइनस कर दो तो ये अब 250 की बिकेगी मार्केट में। अगर आप बोलोगे तो कि भैया मेरे को भट्टा कंपनीज बेचनी है, आई वॉन्ट टू सेल दिस भट्टा प्राइवेट लिमिटेड, सो द मार्केट प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग योर डेप्रिसिएशन विल बी 250। ठीक है, पर्टिकुलर ब्रिक क्लिन की बात हो रही है। ये तो कितने की है? 1 लाख की है, तो इसमें से ही माइनस कर देते हैं 50। ठीक है, सो अब ये साइड कॉन्सेप्ट था, इसको हटा दो। सो 50 रुपीज ऑफ डेप्रिसिएशन हैज बीन हैपेंड व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग दिस कैपिटल एंड कंजम्पशन गुड। तो कंजम्पशन गुड तो चलेगा, उसका कुछ नहीं करना हमें। दिस कैपिटल गुड ऑन विच वी आर होपिंग दैट वी विल गेन प्रॉफिट इन फ्यूचर, 50 रुपीज हैव बीन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन हुआ है हमारे फिक्स्ड एसेट्स का। नाउ देयर आर ओनली कैपिटल गुड्स और कैपिटल फॉर्मेशन वर्थ ऑफ 250 रुपीज, और इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो अब आप इन्वेस्टमेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक this will be all for today. So if you like this video, if your concepts are getting cleared, so please leave a like before leaving and share this video with your friends. तब तक के लिए goodbye, जय हिंद।